Hello friends, my name is Animesh Tayal. Welcome back to my channel TNC IT Solution. Today we will discuss the last phase of compiler, that is code generation, also called object code generation. Before that we have discussed already 5 phases of compiler. The difference between the previous 5 phases and this phase is that previous 5 phases are not machine dependent. They are user dependent, and this phase is machine dependent. So I hope you already watched that videos. If not, please watch it first so that you can understand the concept of object code generation, that is also called machine code generation, properly. So let's start the object code generation phase. Object code generation phase is the machine dependent. It is the last phase of compiler. So friends, in this phase we will discuss the whole concept through some example. Let's start. Input of this phase is intermediate codes, optimized intermediate code we can say, and we are considering here 3 address code only, and the output is object code dot obj file. I hope all of you understand what is the meaning of dot obj file. It is a object code file. So consider one statement: a plus b minus e minus c plus d in bracket whole bracket. So ब्रैकेट्स की पोजीशन ध्यान से देखना, and accordingly 3 address code will be generated according to BODMAS rule. So first 3 address code will be t1 is equal to a plus b, t2 is equal to c plus d, t3 is equal to e minus t2, that is c plus d, and fourth is t4 is equal to t1 minus t3. Clear? So consider it is an input of this phase. It is already optimized. Clear? ऐसा assume करते हैं ये optimized 3 address code है और ये 3 address code generation object code generation phase के लिए input है. Clear? अब आपको इसको convert करना है object codes में. Object code is nothing but the machine understandable codes. Clear? We are using here assembly codes depending upon the processor. So before that object code generation, we are assuming something like we are assuming we have only two registers are available, R0 and R1, and T4 temporaries is live on exit. Means at the time of execution जब आप exit करेंगे तो T4 जो temporaries है उसमें जो भी values होगी that will be the final value, and T4 only T4 will be the live temporaries, remaining T1 T2 T3 will not be available. Clear? So in object code machine language dependent code है. So depending upon the instruction set we will generate the object code. Some mnemonics will be used here, and आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन काओ सब्जेक्ट में ऑलरेडी और माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग भी अगर आपने की है तो आपको पता होगा कि किस तरह से असेंबली कोड्स लिखे जाते हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट 3 address code is t1 is equal to a plus b. So accordingly फर्स्ट 3 address code a plus b का एडिशन है, तो सबसे पहले क्या होगा, मूव कमांड a comma r0. So in this instruction set we are using first operand is the source and second operand will be the destination. Clear? अलग अलग प्रोसेसर्स में अलग अलग रहता है, इसलिए ये स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑपरेंड हियर इज सोर्स एंड सेकंड इज डेस्टिनेशन. इन सम प्रोसेसर्स फर्स्ट इज सोर्स, फर्स्ट इज डेस्टिनेशन एंड सेकंड इज सोर्स. रिमेंबर 8085. So in this instruction set first is source and second is destination. So first command is first instruction is move a comma r0. Clear? So इससे क्या होगा, वेरिएबल परमानेंट वेरिएबल a की जो भी वैल्यू है वो जनरल पर्पस रजिस्टर दैट इज r0 में मूव होगी. क्लियर? देन ऐड ए b comma r0. क्लियर?
B comma R0 means value of B will be added by R0 and final value stored in R0. क्लियर? B वेरिएबल B की वैल्यू R0 के साथ ऐड होगी और स्टोर कहाँ होगी? रजिस्टर R0 में. क्लियर? सो हियर टिल नाउ A एंड B दोनों की वैल्यूज अभी तक एज इट इज हैं, उसमें हमने मॉडिफिकेशंस नहीं किया है. क्लियर? दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई हमने यहाँ जनरल पर्पस रजिस्टर R0 को यूज किया. सेकेंड 3 एड्रेस कोड इज T2 इज इक्वल टू C प्लस डी. सेम फिर से हम क्या करेंगे? मूव C कोमा R1 देन ऐड D कोमा R1. क्लियर? आपके पास दो ही जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे और दोनों को आपने बिजी कर दिया है. क्लियर? एक में A प्लस बी की वैल्यू स्टोर की है, दूसरे में C प्लस डी की वैल्यू स्टोर की है. क्लियर? अब आपको थर्ड टेम्परेरी एग्जीक्यूट करना है. थर्ड टेम्परेरी के लिए इंस्ट्रक्शन सेट जनरेट करने हैं. सो उसमें क्या है? T3 इज इक्वल टू E माइनस T2. सो E माइनस T2 ये परफॉर्म करने के लिए आपको कोई रजिस्टर लगेगा जिसमें आप E की वैल्यू को स्टोर करोगे या T2 की वैल्यू को R1 को स्टोर करेंगे, लेकिन आपके पास कोई जनरल पर्पस रजिस्टर अब है ही नहीं. वी आर ऑलरेडी अज्यूम्ड कि हमारे पास दो ही जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, दैट इज R0 एंड R1. सो अब क्या करना पड़ेगा? वापस से आपको किसी एक रजिस्टर की वैल्यू को टेम्परेरीज में स्टोर करना पड़ेगा जो प्रोग्रामेबल टेम्परेरीज हैं. क्लियर? एंड देन वो रजिस्टर को हम जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज करेंगे ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए एंड वापस से उस वैल्यू को उस पर्टिकुलर रजिस्टर में फिर से ट्रांसफर करेंगे. तो यहाँ क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, मूव हमने R0 रजिस्टर को फ्री किया. मूव R0 कोमा T1, मूव E कोमा R0, सब्ट्रैक्ट के लिए सब यूज किया है, सब इज ए कमांड, सब R1 कोमा R0 एंड मूव T1 कोमा R1. क्लियर? सो क्या हुआ है फ्रेंड्स? जो इंस्ट्रक्शन अगर आपके पास रजिस्टर्स अवेलेबल रहते, सपोज R0 R1 के बाद R2 भी अवेलेबल रहता, तो आपको ये सब अरेंजमेंट्स की जरूरत नहीं थी. आप एक और वेरिएबल्स में E की वैल्यू को, एक और रजिस्टर्स में E की वैल्यू को स्टोर कर सकते थे और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे. बट ड्यू टू दिस लिमिटेशन आपको ये सब अरेंजमेंट्स करने पड़े. तो इससे क्या प्रॉब्लम क्या है? दीज आर द चैलेंजेस ऑफ ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन. द प्रॉब्लम इज cost of the instruction, number of the instructions will be increased, so that cost of the instruction will be increased. complete instructions. clear? इसका क्या solution है बाद में डिस्कस करेंगे. so next is T4 is equal to T1 minus T3. इसके लिए क्या होगा? subtract, क्योंकि दोनों वैल्यूज T1 की वैल्यू कहाँ है? T1 की वैल्यू स्टोर है R1 में. आपने लास्ट कमांड लिखा मूव T1 कोमा R1 और T3 E माइनस T2, T3 की वैल्यू स्टोर है R0 में. सो सब्ट्रैक्ट R0 कोमा R1, फाइनल वैल्यू स्टोर हुई R1 में, देन मूव R1 कोमा T4. क्लियर? मींस फाइनल वैल्यू अब कहाँ स्टोर है? T4 में. क्लियर? सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू शो दैट व्हाट इज द नीड ऑफ मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन. रिमेंबर दिस थिंग, मैं इसको अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ. मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रीवियस फेज के समय मैंने आपको बताया था. प्रीवियस फेज मींस इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में हमने सिर्फ मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशंस परफॉर्म किए हैं, बट इस फेज में आपको मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशंस भी परफॉर्म करने हैं. और डिपेंडेंसी क्या है? मशीन डिपेंडेंसी, मशीन डिपेंडेंसी है जनरल पर्पस रजिस्टर. आपको किसी भी तरह जनरल पर्पस रजिस्टर्स के रिक्वायरमेंट्स को मिनिमाइज करना है. क्लियर? अगर यहाँ आपके पास दो ही रजिस्टर्स अवेलेबल हैं तो वो दो रजिस्टर्स में आप किस तरह से मिनिमम कॉस्ट का इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, यही आपको मिनिमाइज करना है. क्लियर? बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे फ्यूचर में. एक कुछ की पॉइंट्स अभी फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं. अकॉर्डिंगली आपको आई होप वो इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा कि कोड जनरेशन पेज में एग्जैक्टली करना क्या है. सो कुछ की पॉइंट्स हैं. मींस फर्स्ट इज इट इज अ मशीन डिपेंडेंट फेज. इट आल्सो परफॉर्म मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन लाइक which is required to minimize the requirement of general purpose register. क्लियर? द मेन टास्क ऑप्टिमाइजेशन का मेन टास्क ही है कि किसी भी तरह आपको जनरल पर्पस रजिस्टर्स R0 R1 अप टू Rn, ये लिमिटेड रजिस्टर्स रहते हैं किसी भी मशीन में,
उनकी रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज करना है। क्लियर? टू मिनिमाइज दिस रिक्वायरमेंट आपके पास दो एल्गोरिथम्स हैं। क्लियर? एक लेबलिंग एल्गोरिथम एंड अनदर वन इज ह्यूरिस्टिक डैग ऑर्डरिंग एल्गोरिथम। क्लियर? नाम याद रखना, ह्यूरिस्टिक डैग ऑर्डरिंग एल्गोरिथम। क्लियर? ये दो एल्गोरिथम्स को यूज करके आप रजिस्टर रिक्वायरमेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हो। क्लियर? ह्यूरिस्टिक डैग ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग का मतलब है आपको बेस्ट सीक्वेंस ऑफ थ्री हेडर्स कोड, ऑर्डर ऑफ थ्री हेडर्स कोड बेस्ट जो भी रहेगा वो ह्यूरिस्टिक डैग के थ्रू, मीन्स फिर से यहाँ पे डैग का एप्लीकेशन है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। क्लियर? डैग के थ्रू आपको वो बेस्ट ऑर्डर मिलेगा जिसके थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर? so these are the main key points, and this is the points which we have to remember always. Input is optimized intermediate code, output is obj file, .obj file, object code, or we can say assembly code. Functionality: this phase converts the optimized intermediate code into the sequence of machine instruction. Clear? ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड को मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है, दैट इज द मेन फंक्शनैलिटी। इट परफॉर्म्स मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इफेक्टिव रजिस्टर एलोकेशन टू द वेरिएबल्स एंड टेम्पररीज इज द बिग टास्क फॉर दिस फेज। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो इस फेज का है वो रजिस्टर एलोकेशन है। जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेदर दे आर टेम्पररीज और दे आर परमानेंट वेरिएबल्स, उनको जनरल पर्पस रजिस्टर्स और परमानेंट रजिस्टर का एलोकेशन सबसे बड़ा टास्क है। कितने रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, कितने एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अवेलेबल रजिस्टर्स का नंबर चेंज हो सकता है। क्लियर? सो इट डिपेंड्स अपॉन द मशीन, टारगेट मशीन, मशीन टू मशीन वो वेरी करेगा। Clear? So it is the challenge of this phase. Clear? So I hope you understand the basic concept of this phase. In detail we will discuss in future. Clear? So अभी तक मैंने सभी पेजेस का मेन टास्क ही डिस्कस आपके साथ किया है। उनको डिटेल में जब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्लियर? सो आई थिंक मेन फंक्शनैलिटी एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस की है सभी पेजेस की। So I hope you understand. Now some easy question for you, like very easy question. Code generator is dependent on the target language. True or false? आपको आंसर करना है। Code generation phase perform fill in the blank optimization, machine dependent or machine independent. Number 3, give the name of algorithms which will be used for minimize the register requirement. So I hope friends you understand all the concepts of phases. So thank you very much and keep watching my channel. Stay home, stay safe. Next lecture I hope I will be providing you the basic concepts of symbol table management and error handler. Clear? So till then keep watching my channel and clear your concept, ask your doubt, stay home, stay safe. Thank you very much.